Hello everyone, welcome back to Conceptual Maths. Hope so you all are good and studying well. So today we are going to discuss a question based on differential equations asked in your JEE Advanced 2022 paper 2. Before starting, I would like to request you to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss a video from this channel. I would also urge you to please hit the like button if you find the video helpful. It's just a matter of a click for you, but for me it means a lot. So without wasting much time, let's get started. Okay, so question है, for x belongs to R, let the function yx be the solution of the differential equation this. Then which of the following statements is or are true? हमें 4 statements दिए हैं and we have to check which statement is true. So first statement में है yx is an increasing function, second yx is a decreasing function, third there exists a real number beta such that y equal to beta intersects the curve y equal to yx at infinitely many points, and fourth है yx is a periodic function. So let's see how we proceed. So जो हमें differential equation given है वो है ये dy by dx plus 12y equal to cos of pi x by 12. So what is this? This is a linear differential equation, linear in y. Linear differential equation का standard form क्या होता है? dy by dx plus p of y equal to q. So p is 12 here and q is cos of pi x by 12. So इसको हम कैसे solve करते हैं? First we find the integrating factor. What will be the integrating factor? Integrating factor equals to e to the power integration of p dx. And what is p here? p is 12. So ये क्या हो जाएगा? e to the power integration of 12 dx, which equals to e to the power 12x. So this is our integrating factor. Now how do we write the equation? Equation हम लिखते हैं solution y into integrating factor, that is e to the power 12x equal to integration of q, that is cos of pi x by 12 into integrating factor, that is e to the power 12x and the integration dx. अब हम ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं? वी कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हियर, बट उससे ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा. इफ़ वी रिमेंबर दिस रिजल्ट, integration of e to the power ax into cos of bx dx equals to e to the power ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. If we remember this standard result, तो वो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. एंड दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट इज़ वेरी यूज़फुल. जब अगर हम इसका बाई पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करने जाएंगे, ये लेंदी भी होगा, टाइम टेकन भी होगा. सो इफ़ वी रिमेंबर दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट वी कैन इजीली पुट इट हियर. तो इससे ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू e to the power ax upon a square plus b square. What is a here? 12. And what is b? Pi by 12. So e to the power 12x upon a square, a is 12, so 12 square is 144 plus b square, b is pi by 12, so pi square by 144. और into में क्या आएगा? a cos bx. What is a? a is again 12 cos pi by 12 x plus b is pi by 12 sin pi by 12 x. तो if we remember this result, then we can directly write the integration value. और ये बहुत standard result है. You should remember this result because it is very useful in this type of problems. ओके, तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन क्या बन गया? ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा y इंटू ई टू द पावर 12x इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन वैल्यू प्लस कांस्टेंट आएगा, तो प्लस एक कांस्टेंट आएगा c. नाउ इन क्वेश्चन वी आर गिवन दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 0, मतलब व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0. सो विल पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन. तो x को 0 रखेंगे और y को 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. सो 0 इक्वल टू, अब यहाँ पे x को 0 रखेंगे, सो इट विल बी e टू द पावर 0, दैट इज 1. So 1 upon 144 plus pi square upon 144. और ये अंदर क्या आएगा? 12 इंटू cos 0. cos 0 is 1, तो ये सिर्फ 12 आएगा प्लस
pi by 12 into sin 0 is 0, so this term will be 0 plus c. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा c का वैल्यू आ गया. दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू माइनस 12 अपॉन 144 प्लस pi square by 144. Okay, now we'll put this value of c in this equation. ये वाली इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट कर देंगे. सो नाउ हम e की पावर 12x को इधर शिफ्ट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो व्हाट इज y? y इक्वल्स टू e की पावर 12x, इधर जाएगा तो e की पावर माइनस 12x. सो इट विल बी e टू द पावर 0, सो 1. सो 1 अपॉन 144 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 144 इंटू 12 cos pi by 12 x प्लस pi by 12 sin pi by 12x. और ये e टू द पावर माइनस 12x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ. सो 12 अपॉन 144 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 144 इंटू e टू द पावर माइनस 12x. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो अब हम चलते हैं ऑप्शंस पे. ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? yx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड बी में बोल रहे हैं yx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सो आवर फंक्शन इज दिस, y इक्वल टू दिस. अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं. पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट वी डोंट हैव सो मच टाइम इन एग्जाम. तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू ऑब्जर्व द फंक्शन. जो आया है y की वैल्यू, हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए और इस फंक्शन का नेचर, इसका बिहेवियर कैसा होगा वो हम इसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं. उसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं y हमारा क्या आया है, 1 अपॉन ये एक कॉन्स्टेंट इंटू a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस इस e टू द पावर समथिंग. ओके, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा टाइप का फंक्शन बना है. एंड वी नो द ग्राफ ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा. cos थीटा और sin थीटा का ग्राफ कैसा होता है? cos का ग्राफ होता है ऐसे जाता है, राइट, और sin का ग्राफ होता है 0 पे 0 होके ऐसे जाता है. सो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है? ऑब्वियसली नहीं है. एक बार डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा. तो cos और sin का कंबाइंड ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा. उसके साथ हम एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी ऐड कर देंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ तो हमें नहीं मिलेगा, कॉम्बिनेशन में मिलेगा. तो उससे फर्स्ट दोनों ऑप्शंस तो हो गए गलत. ओके, नाउ मूव टू द लास्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन में क्या बोला है? yx इज अ पीरियोडिक फंक्शन. Now we know that cos and sin are periodic function. cos का पीरियड होता है 2 पाई इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है. सिमिलरली sin का पीरियड भी होता है 2 पाई. बट व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? इधर दिस वे और दिस वे. तो ये नेगेटिव में है तो इसका ग्राफ होगा this one. So this is not a periodic function. This is not repeating itself in any intervals of time. तो combined function कैसा बन गया? Non periodic, because this term is not periodic. This is periodic but this is not periodic term. So function yx is not a periodic function. तो ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया. अब हमने 3 ऑप्शंस डिस्कार्ड कर दिए तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. बट वी हैव टू सी दिस वन ऑल्सो. इसमें क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू yx एट इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. तो अब इसको देखो, y ये एक फंक्शन बना है जिसमें cos, sin और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं. तो इसका ग्राफ कोई एक कर्व टाइप का बनेगा. सपोज इस टाइप का कोई कर्व बन गया. इस टाइप का एक कर्व में ही ग्राफ बनेगा क्योंकि cos sin भी इन्वॉल्व है. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का कर्व बनेगा कोई. अब y इक्वल टू बीटा कोई भी एक लाइन है, y इक्वल टू बीटा. y इक्वल टू बीटा इज पैरेलल टू दी x एक्सिस. तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन. इट इज़ नॉट सेइंग कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, कोई फॉर एनी बीटा एक लाइन पास होगी विच विल कट दिस कर्व एट इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स. ऑब्वियस है ये. तो अगर ये वाली लाइन, ये एक इन्फाइनाइट लाइन है y इक्वल टू बीटा, और ये जो कर्व है वो भी एक इन्फाइनाइट कर्व है, तो ये लाइन इस कर्व को इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी, विच इज़ ऑब्वियस. So this option will be correct. There exists a real number beta such that the line this intersects the curve at infinitely many points. तो इससे ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा. Hope so you understood the question. If you have any doubt then ask me in the comment section. One tip from my side.
Please try to memorize all the standard results and formulas of integration and also try to be familiar with the curves of standard functions. ये सब एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए, जैसे कि आज भी हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया. So these are very helpful. Okay, so we'll meet in the next video. Till then, happy learning.